Very good morning, students. I hope you all are doing well. So today we are going to start our sixth chapter, which is more on Paint 3D. Now, in this chapter, we are going to study about paint, which is used to draw different three-dimensional shapes that are cubes, cuboids, spheres, cylinder. So in Paint 3D, what we are going to do, we are going to work with three-dimensional figures and learn how to work with them, how to make creative things with them. In this chapter, we are going to study few topics which are creating a doodle, adding text, changing color of the shape, deleting 3D text, using brush tool, group ungroup shapes, pictures or objects, inserting stickers and adding effects. So these are the few items, few topics which we are going to study in the lesson, and mainly we are going to study about three-dimensional shapes, how to add text with the document we are preparing, and how to add effects in the program. Now, there is an activity which says identify the following shapes and write their names in the unjumble given words. Now, in this activity, jumble words are given and we have to unjumble words. So, first we can see it is a triangle. We will write here triangle. The next is a circle. The third one is a cylinder. And the fourth one is a cube. Now, in previous class, we have also learned some basic terms of Paint 3D and also simple working with it. Yes, we have studied about Paint 3D and some basic working of them. Here we will learn some advanced features of Paint 3D. So in this lesson, we are going to learn some advanced features and advanced working of three-dimensional objects or shapes in the chapter. It is used to draw shapes such as cubes, cuboids, cylinders, cones, spheres, etc. It provides rotate handle to show different views of 3D shapes. Now, in this, it provides us a rotate handle to move or rotate 3D shapes for different views. Let's recall steps to start Paint 3D. Click on Start button and then select the Paint 3D option. When we click on Start button in our computer, a Paint 3D option will appear and we will click on it. Click on New option to start a new drawing. Now what we have to do is we have to click on New option to start our new drawing. So it is the window of Paint 3D. Creating a doodle. How we can create a doodle? A doodle may consist of random shapes and lines together. So basically, first we need to know what is doodle. When we create something with the help of random shapes and random lines, it together makes a doodle. We can use it to make a freehand drawing. We can use doodles to make freehand drawing. We draw objects. These look similar to real life objects. Now in this, when we draw objects, it looks like real objects. There are two types of 3D doodle tools, sharp edge doodle and soft edge doodle. It makes 3D objects by inflating a 2D object. It adds depth to the flat object. Now, we have two types of 3D doodle tools. The first one is sharp edge doodle. What sharp edge doodle do? Adds डेप्थ टू द फ्लैट ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली अगर हमारे ड्राइंग के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फ्लैट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके अंदर डेप्थ ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शार्प एज डूडल. एंड it makes 3D objects by inflating a 2D object. What a soft edge doodle do is it makes 3D objects by inflating a 2D object. मतलब 2D object को हम inflate करके ही एक 3D object create करते हैं with the help of soft edge doodle. To draw a 3D doodle, you have to follow given steps. Click on 3D shapes. The 3D shapes palette appears on the screen.
So when we will click on 3D shapes on our window or the screen of Paint 3D, it will show 3D shapes palette, which is this. Now scroll down and select the sharp edge doodle option. हमारे पास जो भी हमारे पास 3D shapes palette अपीयर होगी उसमें से हमें क्या करना है, हमें sharp edge doodle ऑप्शन को चूज करना है. देन क्लिक एनीवेयर ऑन द कैनवास, और हमें फिर अपने ड्राइंग कैनवास पे कहीं पे भी हम उसको क्लिक कर सकते हैं. आफ्टर दिस प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड मूव कर्सर ऑन कैनवास. नाउ जब हमने अपने कैनवास पे कहीं पे भी उसको क्लिक कर दिया सिलेक्ट करने के बाद में, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक लेफ्ट बटन को प्रेस करना है. हमारे माउस पास जो लेफ्ट बटन है हमें उसको प्रेस करना है एंड मूव द कर्सर ऑन कैनवास, और उसको प्रेस करके रख के हमें अपने कैनवास पे माउस को मूव कर्सर को मूव कराना है. It connects the lines to the straight starting point to finish the drawing of doodle. Now what it will do, it will connect the lines and to the starting point to the finish point of the drawing of doodle. So this is how we can make a 3D image. Changing color of the shape. In Paint 3D, you can change the color of shapes. By default, the shapes occurred in blue color. पेंट 3D में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो भी हम शेप ड्रॉ करते हैं वो ब्लू कलर में अपीयर होती है, बट वी कैन चेंज द कलर ऑफ आवर शेप्स. टू चेंज द कलर ऑफ शेप्स यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स. सिलेक्ट द शेप. हमने जो भी शेप बनाई है हमें उस शेप को सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन एडिट कलर ऑप्शन. हमें क्या करना है, एडिट कलर ऑप्शन पे यहाँ पे उस क्लिक करना है. फ्रॉम द 3D शेप ऑप्शन पैनल अ कलर पैलेट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और हमें क्या मिल जाएगी, हमें एक कलर पैलेट हमारी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी. नाउ इन स्टेप 3 सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर, और हम उस पैलेट के अंदर से अपना कोई भी एक डिजायर्ड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. अ न्यू कलर विल बी फिल्ड इन द शेप, और हमारी जो शेप है उसके अंदर एक नया कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. नाउ एडिंग टेक्स्ट. Paint 3D provides the facility to add text to your drawing. अब Paint 3D जो हमारे पास ऑप्शन है ये क्या करता है, ये हमें टेक्स्ट ऐड करने का हमारी ड्राइंग में फीचर प्रोवाइड कराता है. इट हैज मैनी ऑप्शन सच एज 2D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल एंड अलाइनमेंट. तो बेसिकली वो टेक्स्ट से रिलेटेड सारे फॉर्मेटिंग और एडिटिंग फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है कि हम 2D टेक्स्ट भी कर सकते हैं, 3D भी कर सकते हैं, फॉन्ट हमें कैसा चाहिए, साइज, कलर, स्टाइल और अलाइनमेंट, कि हमें अपने बॉर्डर्स के साथ कैसे अपने टेक्स्ट को अलाइन रखना है. तो ये सारे फीचर्स हमें पेंट 3D के अंदर मिल जाते हैं. नाउ टू ऐड टेक्स्ट इन द पेंट 3D यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स. क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. हमारे पास जो पेंट 3 की विंडो, हमारे पास जो स्क्रीन है उस पर हमें टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है. ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड 2 टेक्स्ट ऑप्शंस. राइट साइड पे हमें क्या मिल जाएंगे, 2 टेक्स्ट ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, 2D एंड 3D. सेलेक्ट 3D ऑप्शन फ्रॉम इट, और हमें क्या करना है, इसमें से 3D ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है. नाउ ड्रैग योर माउस ऑन द कैनवास एरिया टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स, और फिर हमें अपने माउस को अपने कैनवास एरिया पे ड्रैग करना है ताकि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अपीयर हो जाए. यू विल सी द कर्सर इन द टेक्स्ट बॉक्स. अब हमने जब अपने माउस को अपने कैनवस पे ड्रैग किया तो हमें क्या मिल गया, तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स अपनी स्क्रीन पे मिल गया, और उस स्क्रीन पे हम उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक कर्सर हमें यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ मिलेगा. स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, और हम यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट नॉर्मली टाइप कर सकते हैं. चूज योर प्रिफर्ड फॉन्ट, स्टाइल, कलर एटसेट्रा, और हम अपने टेक्स्ट का प्रिफर्ड और डिजायर्ड स्टाइल, फॉन्ट और कलर चूज कर सकते हैं एटसेट्रा. एंड क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड टेक्स्ट ऑन टू योर कैनवास. अब अगर हमें अपने कैनवास पे ही टेक्स्ट ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आके एक क्लिक करना है अपने कैनवास पे, तो जो हमारा कर्सर है वो हमारे कैनवास पे अपीयर हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अपने कैनवास पे अप्लाई और अपीयर कर सकते हैं लाइक दिस. जब हमने अपने माउस को अपने कैनवास पे लाके ड्रैग किया, हमें टेक्स्ट बॉक्स मिला, हमने उसके अंदर अपने डिजायर्ड टेक्स्ट लिखा, और जब हमें इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आना है तो हमने क्या किया, अपने कैनवास पे आके क्लिक कर दिया, तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो चला गया और हमारा टेक्स्ट कहाँ आ गया, हमारे कैनवास पे आ गया.
नाउ डिलीटिंग 3D टेक्स्ट। अब हमने अगर कोई 3D टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने ड्राइंग पे लाया है और हमें उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए वी हैव सम स्टेप्स। सेलेक्ट द 3D टेक्स्ट बॉक्स। हमें क्या करना है, अपने 3D टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टॉप मेन्यू। After this, click on the delete icon in the 3D selection. 3D selection में से हमें delete icon पे प्रेस करना है। Your text will be deleted now. और हमारा जो टेक्स्ट था वो डिलीट हो गया। हमने कोई 3D टेक्स्ट लिखा, उसके कलेक्शन सिलेक्शन में जाके हमने क्या किया, अपने डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो हमारा जो 3D टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। Now using brushes tool. This tool shows various types of brushes and color palette in the brush panel on the right side of the paint tree window. Opens up when selecting the brush tool. Okay. Now using brushes tool. अब पेंट 3D के अंदर हमें ब्रशेस टूल को कैसे यूज करना है। दिस टूल शोज वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस एंड कलर पैलेट। ये क्या करता है, ये हमें वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस और कलर पैलेट को शो करता है। कहाँ पे, ब्रशेस पैनल में, ऑन द राइट साइड ऑफ द पेंट थ्री विंडो। पेंट थ्री विंडो की जो राइट साइड है, राइट साइड में ये हमें क्या करता है, एक ब्रश पैनल शो करता है। और जो कब ओपन होता है, व्हेन वी सिलेक्ट ब्रशेस टूल। इट डिस्प्लेस 10 ब्रश ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस। तो इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है, इसके अंदर हमें 10 ब्रश ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। This panel also provide options for controlling thickness, opacity, material and color. और इस पैनल के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमारे क्या थिकनेस होनी चाहिए, हमने जो ब्रश सेलेक्ट करा है उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन्स कितना विजिबल होना चाहिए, जितनी कम ओपेसिटी उतना कम वो दिखेगा, और जितनी ज्यादा ओपेसिटी उतना ज्यादा वो दिखेगा। तो थिकनेस, ओपेसिटी, मटेरियल एंड कलर, ये भी हम अपने ब्रशेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट पैनल। ब्रशेस टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड इमेजेस। और हम ब्रशेस टूल को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी ड्राइंग के अंदर फ्री हैंड इमेजेस को ड्रॉ कर सके। नाउ स्टेप 1, क्लिक ऑन द ब्रशेस ऑप्शन ऑन द मेन्यू बार। हमें मेन्यू बार में क्या करना है, ब्रशेस ऑप्शन को क्लिक करना है। ब्रशेस पैनल, दिस, हमें ब्रशेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ब्रशेस पैनल अपीयर्स ऑन राइट साइड। सेलेक्ट ऑयल ब्रश फ्रॉम द ब्रशेस पैनल। हमारे को जब हमने ब्रश पैनल सेलेक्ट करा, राइट साइड में हमें क्या मिल गए, वेरियस ब्रशेस मिल गए। अब हमें यहाँ से ऑयल ब्रश को सिलेक्ट किया। यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रश बाय ड्रैगिंग द थिकनेस स्लाइडर। और हम थिकनेस स्लाइडर को ड्रैग करके अपने ब्रश की जो थिकनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। एंड प्रेस एंड होल्ड द माउस बटन टू ड्रॉ डिजायर्ड शेप्स ऑन कैनवास। अब हमने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, हमने थिकनेस सेलेक्ट कर ली। अब उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, अपने माउस के बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है, और कुछ भी हम अपने कैनवस पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ग्रुप अनग्रुप शेप्स, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। इन दिस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि शेप्स, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप और अनग्रुप कैसे करना है। नाउ द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू ड्रॉ आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। जो भी हम पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं वो कैसे होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं, अलग होते हैं। लाइक मैंने अपनी स्क्रीन पे कोई सर्कल ड्रॉ करा तो वो अलग है, मैंने कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करा तो वो इंडिविजुअल है। तो ये जो दोनों शेप्स हैं ये अपनी इंडिविजुअल शेप्स हैं। नाउ इफ यू वांट टू ट्रीट देम एज वन ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट की जैसे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करना है, तो हम उन्हें ग्रुप कर देंगे। That means we are going to bind them up, we are going to put them together in a grid कि वो दोनों क्या हो जाए, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। Now ungrouping object means organizing the data in different forms like movies in different and pictures in different। मतलब अनग्रुपिंग का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में अनग्रुप कर दें, जैसे इन मूवीज और इन डिफरेंट पिक्चर्स। ठीक है, टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। अब अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग देम वन बाय वन व्हाइल कीपिंग शिफ्ट की प्रेस्ड। अब जैसे मेरे पास ये दो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं और शेप्स हैं, सर्कल और रेक्टेंगल। अब मुझे इन दोनों को ग्रुप करना है तो मैं क्या करूंगी, सर्कल को सेलेक्ट करूंगी और शिफ्ट की को प्रेस करके, शिफ्ट की विल बी प्रेस्ड,
शिफ्ट की को प्रेस करके मुझे रेक्टेंगल पे भी क्लिक करना है। हमने सर्कल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करी और हैंड टू हैंड रेक्टेंगल को भी मैंने सिलेक्ट किया। नाउ द राइट पेन, इन द राइट पेन क्लिक ऑन ग्रुप बटन। हमारे को राइट पेन एक ओपन होगा, उसमें हमें क्या करना है, ग्रुप बटन को सिलेक्ट करना है। दोनों फिगर्स को सिलेक्ट करने के बाद में बाय प्रेसिंग shift key we are going to select group option in the right pane. The selected object will become a single object. और हमारे जो दोनों थे सर्कल और रेक्टेंगल वो अब क्या हो चुके हैं, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो चुका है। इफ आई एम गोइंग टू मूव सर्कल द रेक्टेंगल विल बी ऑल्सो बी मूविंग। नाउ इफ यू वांट टू अनग्रुप दीज ऑप्शंस दीज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट दी अनग्रुप बटन। और अगर हमें इसको अनग्रुप करना है, सर्कल और रेक्टेंगल अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अनग्रुप बटन को सिलेक्ट करेंगे। Now inserting stickers. The sticker tool is used to insert sticker on a canvas. स्टिकर टूल्स का हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने कैनवस में क्या ऐड करने हैं, स्टिकर्स ऐड करने हैं। Now to do this you have to follow given steps. Click on the sticker tool. हमें स्टिकर टूल को सेलेक्ट करना है। The sticker pane will be shown on the right side with 3 tabs. जब हम स्टिकर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो हमें स्टिकर पेन शो होगा राइट साइड में विद 3 टैब्स, स्टिकर्स, टेक्सचर एंड कस्टम स्टिकर्स। नाउ क्लिक ऑन द स्टिकर्स टैब। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टिकर्स टैब पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द स्टिकर एज पर योर चॉइस। स्टिकर पे क्लिक करके हम अपने पसंद का कोई भी एक डिजायर्ड स्टिकर चूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू द कैनवस। हमने अपने पेन में से कोई भी एक डिजायर्ड स्टिकर चूज किया और फिर हम उसको माउस की मदद से सिलेक्ट करके ड्रैग करके अपने कैनवस पे लाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। तो हमने जो डिजायर्ड स्टिकर सिलेक्ट किया है वो हमारे कैनवस पे एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। नाउ मॉडिफाइंग आवर स्टिकर। The sticker you have inserted into a canvas can be changed in its size, position and appearance. हमने जो भी स्टिकर अपने कैनवस पे अप्लाई किया है, उसको पेस्ट किया है, वो स्टिकर में हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एंड हम उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। So now resizing our sticker. You can change the sticker size by dragging the side or corner handles given with the image. अब अगर हमें अपने स्टिकर को रिसाइज करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी हमारा स्टिकर है उसके साइड हैंडल्स को या फिर कॉर्नर हैंडल्स को हम यूज करके उसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। मूविंग और कॉपिंग अ स्टिकर। अब अगर हमें अपने स्टिकर को मूव या फिर कॉपी करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। टू मूव और मेक अ कॉपी ऑफ स्टिकर यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। यूजिंग द सिलेक्ट टूल चूज द स्टिकर। सबसे पहले सिलेक्ट टूल को यूज करके हमें क्या करना है, अपने स्टिकर को चूज करना है। सेलेक्ट द कॉपी बटन अंडर द एडिट ऑप्शन इन 2D सिलेक्शन पेन। हमारे पास क्या है, राइट साइड में एक 2D सिलेक्शन पेन है जिसमें से हम क्या करेंगे, कॉपी कॉपी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट द पेस्ट बटन। फिर हमें क्या करना है, पेस्ट बटन को सिलेक्ट करके, दिस इज द पेस्ट बटन को सिलेक्ट करके a new or duplicate copy of the selected sticker will be placed over the already present sticker. फिर क्या होगा, जब हमने अपने स्टिकर को सिलेक्ट किया और 2D सिलेक्शन पेन में जाके हमने कॉपी किया तो हमारे स्टिकर की डुप्लीकेट कॉपी उसी स्टिकर के ऊपर अपीयर हो जाएगी और फिर हम पेस्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। नाउ सेलेक्ट द स्टिकर विच यू हैव इंसर्टेड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट टू द डिजायर्ड न्यू लोकेशन। जब हमने अपने स्टिकर को कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो हमारे पास एक डुप्लीकेट स्टिकर आ गया और उस डुप्लीकेट स्टिकर को उसके डिजायर्ड लोकेशन पे ले जाने के लिए हम उसको होल्ड करके ड्रैग कर देंगे और वो एक दूसरा उस लोकेशन पे वो स्टिकर एज इट इज आ जाएगा। नाउ डिलीटिंग द स्टिकर। अब अगर हमें उस स्टिकर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, टू डिलीट द स्टिकर यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। क्लिक एंड ड्रैग योर माउस अराउंड द स्टिकर यू वांट टू डिलीट। हम क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे माउस को किसके अराउंड, अपने स्टिकर के अराउंड जिसको हमें डिलीट करना है। सेलेक्ट इट, प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड टू डिलीट द स्पेसिफिक स्टिकर। हमारे कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेजेंट होती है
तो उस स्टिकर को सिलेक्ट करके हमें उस अपने कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रेस कर देना है और सिलेक्ट डिलीट बटन अंडर द एडेड ऑप्शन इन द 2D सिलेक्शन पेन। अगर हम कीबोर्ड से नहीं करना चाहते हैं तो हम अपने 2D सिलेक्शन पेन में से भी डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके अपने स्टिकर को इजीली डिलीट कर सकते हैं। नाउ एडिंग इफेक्ट्स। The paint effect let you paint brush, strokes and particle effects on a 2D canvas on or between 3D geometry. Now, अब हमें क्या करना है? अब हम अपनी ड्राइंग में इफेक्ट्स को ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, द पेंट इफेक्ट लेट यू पेंट ब्रश स्ट्रोक। जो पेंट इफेक्ट होते हैं ये हमें क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है टू पेंट ब्रश स्ट्रोक्स एंड पार्टिकल इफेक्ट ऑन अ 2D कैनवस ऑन or between 3D geometry. You can use these effects as a traditional paint program to paint images on a canvas or to paint repeatable texture. तो हमारे पास ये कुछ फीचर्स है जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम रिपीटेबल टेक्सचर्स को ला सकते हैं या फिर अपने प्रोग्राम के अंदर इमेजेस को पेंट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम स्टेप्स through which we can achieve these effects. Open your saved paint 3D फाइल। हमारी जो भी पेंट 3D की फाइल है जो सेव्ड है ऑलरेडी, हम उसको ओपन करेंगे। देन क्लिक ऑन द इफेक्ट्स टूल। हमारी विंडो पे जो इफेक्ट्स टूल है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। देन दी इफेक्ट पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड और सिलेक्ट करने के बाद हमें अपनी राइट साइड पे क्या मिल जाएगा, एक इफेक्ट्स पेन मिल जाएगा। रोटेट द आइकन दिस इन द इफेक्ट पेन। हम अपने इस आइकन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इफेक्ट पेन के अंदर, विच एनहेंस और एनलाइटन द अप्लाइड इफेक्ट। जो क्या करेगा, हमारे अप्लाई करे हुए इफेक्ट को या तो एनहेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा या फिर एनलाइट करेगा। So by using these options or these steps, we can do is we can enhance or enlighten the object in our document or our drawing. So I hope students the lesson is clear to you that how we can add stickers, text and different effects on the objects in our Paint 3D. So Paint 3D basically works with three-dimensional figures. It adds stickers, it adds effects, it enhances it, it enlightens it, and it modifies the overall drawing. So I hope students you all got it right. Revise the chapter and do practice the exercises. I will see you in your next video with the next chapter. Till then, take care. Bye bye.